Good evening, you all. So we were doing magnetic effect of current now. So we have dealt with the basics of magnetism, Oersted experiment, different magnetic field pattern produced by different current carrying wire. Thereafter motor principle, kicking wire experiment. Right now we are able to form an electric motor, means we will study the principle, construction and working of electric motor. But before that, as I had discussed with you all in the last class, that just like if the direction of current is important, as the direction of magnetic field is important, the direction of force or motion is also important, and it is given by Fleming's left hand rule. So before studying about electric motor, we need to know about Fleming's left hand rule, as we all know that electric motor converts electrical energy into mechanical energy. So definitely we need to find the direction of motion, and as I am repeating my words regularly, that if you have the direction of electric current and the direction of magnetic field, if you want to find the direction of motion or force, it will be found by Fleming's left hand rule. So first topic we will have for today, Fleming's left hand rule for the direction of motion or force. Then we will be discussing what is an electric motor. Types of electric motor. Principle on which an electric motor works. And the last one for today, electric motor construction and working. Write it down, guys. Sorry? नो, क्यों डालना है? अभी आप अटेंड नहीं कर सकते क्या क्लास? क्यों? जाएगा बट थोड़ा टाइम लग जाएगा, मतलब 4 से 5 दिन लग सकता है, या फिर आप किसी को फोन करके उससे लिखवा लीजिएगा. The students who came late, these are the topics which will be discussed today, and as we have done with the basics of magnetism, Oersted experiment, different magnetic field pattern and motor principle. Right now we are in the condition to discuss all about electric motor. These are the sequence. आज का क्लास जो छोड़ेगा या नहीं कर पाया, बहुत मुश्किल होगी. आप रिकॉर्डिंग्स से देख सकते हैं, लेकिन फिर इस चैप्टर को आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे. चीजें कनेक्टेड हैं. आप मोटर प्रिंसिपल अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक मोटर का फंक्शन कैसे समझेंगे? इसीलिए आज मैं मोटर शुरू करने से पहले मोटर प्रिंसिपल एक बार और डिस्कस करूंगा. लेकिन दीज क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज अटेंड ऑल द क्लासेस. राइट इट डाउन फास्ट. हैव यू ऑल रिटन? फर्स्ट टॉपिक इज Fleming's left hand rule for the direction of motion or force. Second one, what is an electric motor? Third one, types of electric motor.
Fourth one, principle on which an electric motor works, and last one, electric motor construction and working. Means what is the construction of electric motor and how does it work. Before starting today's class, as I had discussed with you all that Faraday was too much intelligent. He took the Oersted experiment very seriously and different way. What he imagined, what he thought, that if the current is flowing through a circuit in Oersted experiment, the needle gets deflected. It means that whenever we flowing electric current through the circuit, it is just producing motion, means it is just applying force. As we all know that to change the position of a body, we need to apply force. If the needle was in this way and you just flow current through the circuit and needle moves in this way, in fact if you change the direction, the needle will move in this way. We find the direction of movement, means the direction of magnetic field, as from the help of Maxwell's right hand thumb rule. But what Faraday thought, that if you are flowing current through this conductor, the needle is deflecting. It means that force is being applied. This was first part, and the second part Faraday took from Newton. What he imagined, what he thought, that if the force is being applied by the wire on the needle, then the needle will also apply the same magnitude of force on the wire. It means that if 10 Newton of force is being applied by the wire, then the needle will also apply minus 10 Newton on the wire. And if the wire is moving the needle can also move the wire. However, here the wire is fixed, that's why it is not moving. Last day we performed an experiment and we showed that if the wire is free to move, if we make the wire free to move by the help of jaws and by the help of a liquid just like mercury, then we observed that whenever the current is being flown and magnetic field is being provided, the wire is moving. In fact, if they change the direction of current, the direction of movement also gets changed. It proves that by the help of electric current and magnetism, we can produce motion. I had discussed you in the last class that we have studied to produce magnetism by the help of electricity, which was given by Oersted in 1820. Oersted told us if this is a conductor, if this is a wire flow and current is flowing through it, it produces magnetic field around it. Oersted proved it. In fact, right now we have a common branch, that is electromagnetism. Means everyone knows that whenever there is electric current, there is magnetism. That was given by Oersted in 1820. And just in 1821, Faraday was giving this. Faraday was doing this. What Faraday was doing? Faraday used Oersted experiment. Faraday used Newton's third law of motion, and Faraday gave a new concept known as motor principle. As I had discussed you in the last class, that if a current carrying conductor is placed in a magnetic field, there is a force exerting on the conductor which can make it move. Please, I just repeat, which can make it move. It is not possible to move all the time, because here, in fact, at your home, you have domestic electric circuits. The wire is not dancing, the wire is not moving, because these wires are fixed. But if we unfix it, if we make it move, it can move. So what Faraday told us in his motor principle, if a current carrying conductor is placed in a magnetic field, there is a force exerting on the conductor which can make it move. And by the help of this principle, we are in the condition to form a motor in which we do the same. We just provide current carrying conductor, just coil it is. We provide magnetic field, and when the switch is being on, means when the current is being flown, motor moves, means motion is being produced, means force is being produced. Actually the wire moves just like that, but the wire moves in which direction it will move?
as the direction of current is important, as the direction of magnetic field is important, the direction of motion is also important. So first topic we have for today before starting motor, Fleming's left hand rule. Fleming told us how to find the direction of motion, how to find the direction of force by the help of direction, if you know the direction of current and direction of magnetic field. And Fleming told us that if we take first three fingers of our left hand perpendicular to each other, and if we take the direction of forefinger as the direction of magnetic field, the direction of center finger as the direction of electric current, then the direction of thumb will show the direction of motion. फ्लेमिंग ने हमें ये बताया कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट थ्री फिंगर्स को एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लेते हैं और अगर आप फोर फिंगर को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं, अगर आप सेंटर फिंगर को डायरेक्शन ऑफ करेंट मानते हैं, तो थंब जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगा. याद कैसे रहेगा? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में इनपुट था फोर फिंगर और सेंटर फिंगर. इसको मिडल फिंगर भी कह सकते हैं, लेकिन हम सेंटर फिंगर यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका काम हमारे मतलब आने वाला है. तो आउटपुट जो होगा, ये दोनों इनपुट हैं आपके, तो आउटपुट जो आपके पास होगा वो आपको देगा थंब. अब करना क्या है ना कि कैच करना उन चीजों को जो आपके काम का है. फोर फिंगर में एफ है मैग्नेटिक फील्ड और यही बताता है एफ से फील्ड. याद रखने का यही तरीका है, एफ फोर फिंगर, एफ फोर फील्ड. दूसरा सेंटर फिंगर करेंट का डायरेक्शन, सी से करेंट और सी से सेंटर फिंगर, इसलिए मैंने मिडल फिंगर नहीं लिया था. और थंब में एम जो है वो मोशन बता रहा है. ऐसे ही याद रखते हैं हम लोग. बाकी मैंने देखा है कुछ लोग फादर मदर चाइल्ड क्या क्या करते हैं, एफ से फादर बोल देते हैं, सी से चाइल्ड बोल देते हैं, एम से मदर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको लेफ्ट हैंड लेना है. कई बार बोर्ड्स में पूछ दिया जाता है या स्कूल एग्जाम में, तो आप यही लिखना भूल जाते हैं कि लेफ्ट हैंड लेना है कि राइट हैंड लेना है. तो पहला इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो गया कि आपको लेफ्ट हैंड लेना है. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि फर्स्ट थ्री फिंगर लेना है, लास्ट का टू नहीं लेना है. तीसरा इंपॉर्टेंट चीज कि सबको एक दूसरे पे परपेंडिकुलर लेना है. आप देखो, ये इस पे मैंने परपेंडिकुलर लिया है, ये इस पे परपेंडिकुलर और ये इस पे परपेंडिकुलर है. तीनों ही को एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाते हो. अगर आप ऐसे उंगली को अरेंज करते हैं तो फिर ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं होगा, या आप ऐसे कर दें तो नहीं होगा. आपको सबको एक दूसरे पे परपेंडिकुलर लेना है. और चौथा, क्या इनपुट है क्या आउटपुट है. कई बार बच्चे बोल देते हैं कि थंब अगर मोशन का डायरेक्शन है, सेंटर फिंगर अगर करंट का डायरेक्शन है, तो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएगा. तो गलत ही होना है ना. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही समझना है कि इसका यूज आप क्यों कर रहे हैं. अगर आपके दिमाग में अगर ये टॉपिक इवन मैंने लिखा, पहला टॉपिक मैंने लिखा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो मैंने क्यों लिखा, ये अभी जस्ट मैं डिस्कस कर रहा था आप सबसे कि मोटर पढ़ने से पहले फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जानना जरूरी है. क्यों जरूरी है? क्योंकि मोटर में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी निकालते हैं, मतलब क्या करते हैं, करंट पास करते हैं और मोशन मिलता है. तो अब जो मोशन मिलेगा उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, क्या होगा. तो मतलब जब हमारे दिमाग में ये आया कि मोशन का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, क्योंकि हम लोग किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में ये देख चुके थे कि आप करंट का डायरेक्शन चेंज कीजिएगा तो मोशन का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है. तो अब हमें मोशन का डायरेक्शन फाइंड करना पड़ेगा. तो जैसे ही मोशन का डायरेक्शन का फाइंड करने का बात आया, तभी ये बात लिखा गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. इसलिए मैंने टॉपिक में लिख रखा है यहां पे, आप देखो. और ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब मैं राइट हैंड रूल आपको बताऊंगा तो मैं बोलूंगा आपको कि ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए होता है. तो आई हैव रिटन हियर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स. तो आउटपुट तो आपको यही चाहिए, मोशन और फोर्स. और लास्टली भी मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि मोटर प्रिंसिपल जो है वहां पे आप करंट देते हैं, मींस करंट इनपुट है, मैग्नेटिक फील्ड आप देते हैं, मींस मैग्नेटिक फील्ड इनपुट है. मिलता क्या है आपको, मोशन या फोर्स मिलता है, मींस मोशन या फोर्स आउटपुट है. तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और कुछ भी रटना नहीं है. थोड़ा सा समझ लीजिए कि एफ से फोर फिंगर होता है तो एफ से मैग्नेटिक फील्ड हमें रखना है. ये ट्रिक है एक तरीके का. सेंटर, अब यहां मिडिल रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए सेंटर फिंगर मैंने लिखा है.
तो C से करंट होता है, और थंब में M आता है, और M जो है वो मोशन के लिए है। तो इतना आपको रखना है और स्टेटमेंट बना देना है। Fleming told us that if we take first 3 fingers of our left hand perpendicular to each other, and if we take the direction of forefinger as the direction of magnetic field, the direction of center finger as the direction of electric current, then the thumb will show the direction of motion or direction of force. अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट 3 फिंगर्स को एक दूसरे पर परपेंडिकुलर रखें, और अगर 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता हो, अगर सेंटर फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट बताता हो, तो थंब जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। क्लियर, या फिर से बताना है? हाँ बताइए बच्चा। अमरनाथ फिर से क्या बोल रहे हैं? ओके, मैं ये बोल रहा हूं कि इस चैप्टर में रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि करंट का डायरेक्शन तो हम लोग बहुत मतलब टाइम लगाए थे ये समझने के लिए क्यों डायरेक्शन हम लोग हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल लगाते हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोग देखे कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। फिर हम लोग देखे अगर सर्कुलर कोयल है तो क्लॉक रूल यूज करते हैं। फिर हम लोग देखे कि अगर सोलेनॉइड है तो नॉर्मल रूल यूज करते हैं कि आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ जाएंगे और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना भी इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरीके से करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, लाइट जब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे तो वहां पर रे का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसी तरीके से मोशन या फोर्स का डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर बनाने वाले हैं। मोटर प्रिंसिपल इसीलिए हम लोग पढ़े हैं। फैराडे हमें मोटर प्रिंसिपल दिया कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड पर में रखेंगे तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है जो उसे मूव करा सकता है। तो अब ये जो मूव कराएगा, किधर कराएगा, किस डायरेक्शन में कराएगा, हमें पता करना होगा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल दिया जिसे हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि फ्लेमिंग हो या मैक्सवेल, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे, बहुत ही प्रैक्टिकल साइंटिस्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि इनके रूल को समझने के लिए कोई लैबोरेटरी जाने की जरूरत नहीं होती है। आप ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठे हैं, मतलब गर्मी के टाइम में आम के पेड़ के नीचे आप बैठे हैं दोस्त के साथ, और आपका दोस्त बोला यार फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कुछ बता रहे थे सर, और आप अपना हाथ लिए और बताना शुरू कर दिए। कोई लैब की जरूरत नहीं, कोई टेम्परेचर एडजस्ट नहीं करना है, कोई आपको apparatus नहीं चाहिए, कोई टेस्ट ट्यूब नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अब ओम्स लॉ के लिए तो आपको सर्किट बनाना पड़ेगा, या और भी कई रूल्स हैं जिनमें समझाना, स्पेशली इन सब चैप्टर्स में। मैकेनिक्स में तो फिर भी एक न्यूटन का लॉ भी आप ऐसे ही बता सकते हैं पेड़ के नीचे बैठ के। तो ये सब रूल्स के पहले ये चीजें कितनी मतलब कितना अलग है ना ये, कि हम अपने हाथ से बता दे रहे हैं कि क्या डायरेक्शन हो जाएगा। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल सब लोग जानता है कि अगर इसको आप करंट डायरेक्शन ले लिए तो जिधर उंगली, अब उंगली इधर ही आएगा, ये उंगली इधर जा ही नहीं सकता अगर आप राइट हैंड ले रहे हैं तो ये लोग बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए हैं, और इसीलिए फिजिक्स आसान कर दिए ये लोग, अदरवाइज काफी मुश्किल होता फाइंड कर पाना। तो फ्लेमिंग ने हमें बताया कि अगर आपको करंट का डायरेक्शन पता है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, तो आप बहुत आसानी से मोशन या फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। फ्लेमिंग ने यह कहा कि आप अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट 3 फिंगर्स को एक दूसरे पर परपेंडिकुलर रखें, और अगर 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, अगर सेंटर फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी जस्ट हम लोग जब मोटर बनाएंगे, जब मोटर का फंक्शन पढ़ेंगे, तो मोटर का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्यों होता है हम लोग ऐसे ही तो समझेंगे। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ लेंगे, करंट का डायरेक्शन देख लेंगे कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, और जैसे ही हमें ये पता चल गया अगर अंगूठा नीचे की तरफ आ रहा है तो मोशन नीचे की तरफ हो जाएगा, अगर अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा है तो मोशन ऊपर की तरफ हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोग देखेंगे मोटर में। लेकिन उसके पहले समझना आपके लिए 2 चीज जरूरी है। पहला कि करंट का डायरेक्शन तो आप जान ही रहे हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है। और अब थंब के हेल्प से आप पता करेंगे कि मोशन का डायरेक्शन क्या होगा या फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो एज इनपुट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, एज इनपुट आपके पास इलेक्ट्रिक करंट होता है, और इन दोनों इनपुट के हेल्प से आप बता करते हैं कि मोशन का डायरेक्शन क्या होगा। और इसके लिए आपको यह बताया कि 4 फिंगर का जो डायरेक्शन होगा, 4 फिंगर को आपको मानना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सेंटर फिंगर को आपको मानना है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। तो थंब
होगा वो मोशन का डायरेक्शन देगा। तो इन दोनों को जब भी आप लिखे, आप इफ लिखेंगे और जब आप आउटपुट की बात करेंगे तो देन लिखेंगे। मैं फिर से लैंग्वेज बता रहा हूं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। According to Fleming's left hand rule, if we take first 3 fingers of our left hand perpendicular to each other, and if 4 finger represents the direction of magnetic field, if center finger represents center finger represents the direction of electric current, then thumb will show the direction of motion or direction of force. Clear? इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? The device which converts electrical energy into mechanical energy is called electric motor. एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। इट इज वेरी सिंपल ना। हम लोग फैन तो देखे ही है, फैन के अंदर मोटर होता है, सबको पता है। तो फैन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग स्विच ऑन जैसे ही करते हैं फैन घूमना शुरू हो जाता है। स्विच ऑन करते हैं मतलब करंट देते हैं, करंट दे रहे हैं, फैन घूमना शुरू हो गया, मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी आपको मिल रहा है। द सेम थिंग इट हैज बीन रिटन। आप अपने लैंग्वेज में कुछ और भी डाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे आप इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर फर्दर 2 टाइप्स का होगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मोटर जो है वो सिर्फ फैन में नहीं होता है, रेफ्रिजरेटर में भी होता है, कूलर में भी होता है, वॉशिंग मशीन में भी होता है, मोटर लगा होता है। एक को आप कहते हैं एसी मोटर और दूसरे को आप कहते हैं डीसी मोटर। एसी मोटर द मोटर विच वर्क्स ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट, means the motor which needed alternating current, and DC motor the motor which needed direct current। अब जैसे आपका जो फैन है, फैन का जो मोटर वो एसी मोटर है क्योंकि उसमें आप ऑल्टरनेटिंग करंट देते हैं। लेकिन एक बच्चों का जो खिलौना होता है टॉय, और उसमें जो मोटर लगा होता है, बहुत सारा खिलौना होता है ना जिसमें वो घूमता है, उसमें भी एक मोटर लगा होता है, लेकिन वो डीसी मोटर होता है क्योंकि उसमें आप करंट सप्लाई नहीं करते, मतलब बाहर से सप्लाई करंट नहीं करते, उसमें बैटरी लगा होता है या कहीं सेल लगा होता है, तो वो डायरेक्ट करंट पे वर्क करता है। तो मोटर 2 है, एक है जिसको कि अल्टरनेटिंग करंट की जरूरत होती है, वो एसी मोटर हो गया, दूसरा जिसको डायरेक्ट करंट की जरूरत होती है वो डीसी मोटर हो गया। अब मोटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा? आंसर है आपका मोटर प्रिंसिपल। मोटर प्रिंसिपल क्या है? If a current carrying conductor is placed in a magnetic field, there is a force exerting on the conductor which can make it move। अब मोटर में आप, मोटर प्रिंसिपल तो ये है, लेकिन मोटर में आप सिंगल वायर नहीं लेते। सिंगल, सीधी सी बात है, आगे आप देखें, पहले भी आप देखें, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। तो यहां पे भी तो चीजें होंगी। सिंगल वायर आप लेंगे तो कोई काम ही नहीं आपका हो पाएगा। तो फिर अब आप यहां पे आप क्या करते हैं? आप रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं और रेक्टेंगुलर कॉइल लेके उसको घुमाते हैं, मतलब करंट देते हैं तो वो घूमता है। तो अब आप जहां पे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बोल देते हैं वहां पे कॉइल बोल दीजिए, तो मोटर प्रिंसिपल और जस्टिफाइड हो जाएगा। मींस इफ वी टेक अ रेक्टेंगुलर कॉइल and current flow through and if we current flow through it and place it in a magnetic field, then there is a force exerting on that coil which makes it move। अगर किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को, अगर किसी कॉइल को, अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस कॉइल पर एक फोर्स लगता है जो इसे मूव कराता है। कॉन्सेप्ट ये समझने की जरूरत है कि हम एज इनपुट 2 चीजें दे रहे हैं, पहला करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग कॉइल और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें मिलेगा मोशन। यही चीज तो मैं हर दिन डिस्कस कर रहा हूं ना आपसे कि पहले आपको ओरस्टेड बताया कि कहीं करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वी हैव स्टडीड ऑल द थिंग्स अबाउट दैट। अब हम लोग सीख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को कंबाइन करके मोशन प्रोड्यूस किया जा सकता है। यही लास्ट डे मैंने एक लाइन लिखा था ना कि आप क्या करो हो, आप करते ये हो कि आप ले लेते हो इलेक्ट्रिक करंट
अब इलेक्ट्रिक करंट आप हाथ में थोड़े ना लेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, और फिर आप मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, मतलब मैग्नेटिज्म, और नया चीज आप प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज मोशन और फोर्स। ये चीज अगर आप समझ लें जिंदगी भर आपको याद रहेंगे, और 12th में आपको ये सब कुछ फिर से पढ़ना ही है। तो आप इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म को मिक्स करके मोशन और फोर्स बना रहे हैं। यही तो इसके पहले हम बता रहे थे कि सेंटर फिंगर करंट का डायरेक्शन बताएगा, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, तो थंब मोशन और फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो मोटर यही तो करता है, मोटर को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से थोड़ी ना होगा, डेफिनेशन में हम लोग भले ही लिख देते हैं क्योंकि बाहर से हमें यही दिखता है। अगर एक मोटर में मैग्नेट ना लगा हो, अगर एक मोटर में मैग्नेट ना हो, मैग्नेटिज्म ना हो, तो थोड़ी ना वो कन्वर्ट कर पाएगा। लेकिन मैग्नेटिज्म हम वहां पे डिस्कस नहीं करते हैं व्हेनेवर वी डिफाइन इलेक्ट्रिक मोटर। अदरवाइज अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो मोटर में एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल में आप करंट पास कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देते हैं और वो मूव करने लगता है। सवाल है मूव कैसे करने लगता है। अब ये सवाल कि मूव कैसे करने लगता है, इसके लिए हमें स्केच करना होगा इलेक्ट्रिक मोटर को। नॉर्मल सा एक आप रेक्टेंगुलर कॉइल ले लीजिए, चीजें बहुत ही सिंपल और आसान है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल ले लिया मैंने और इसको मैं कनेक्ट करूंगा कम्यूटेटर से। क्यों करूंगा, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा कि हर जो भी मैंने चीज मैं यहां जोड़ रहा हूं वो क्यों जोड़ रहा हूं, उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन सी चीजें हैं इसका भी आंसर मैं बताऊंगा। फिलहाल आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। डायग्राम स्केच करने की जरूरत है नहीं क्योंकि बुक में है ही दिया हुआ, नहीं कर पाएगा तो नेक्स्ट डे मैं फिर से बना के आपको बता दूंगा। पहले समझना है, जरूरी समझना आपको यह है कि हमने एक लिया रेक्टेंगुलर कॉइल, फिर हमने यहां पे लगाया कम्यूटेटर, फिर यहां पे हमने लगाया कार्बन ब्रश। बाकी ये सर्किट है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा जानते हैं कि ये बैटरी लगा हुआ है या की लगा हुआ है। इतना करके कई बार स्टूडेंट छोड़ देते हैं। गलती से भी ये गलती मत कीजिएगा, मैग्नेटिज्म देना बहुत जरूरी है। अगर आप मैग्नेट नहीं दे सके तो कोई काम आपका नहीं होगा। और ये मैग्नेट अंदर अंदर कनेक्टेड हैं, 3D डायग्राम है इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको। बाकी आप जानते हैं, अच्छे से आपको बताया गया है कि कहीं पे भी सिंगल नॉर्थ पोल नहीं मिलेगा। एक मैग्नेट को आप तोड़ते हैं तो वो नॉर्थ साउथ फिर से क्रिएट जनरेट हो जाता है। तो ऐसा है ना कि लाइक सर्कुलर मैग्नेट का पोल होता कहां पे है? हाँ, तो अगर सपोज किया जाए कि कहीं पे कोई सर्कल है, यहां पे तो दिख भी नहीं रहा मुझे, अगर कोई सर्कल है ऐसा, तो ये सामने वाला आपका नॉर्थ है और पीछे वाला साउथ है। अब आप जब तोड़िएगा तो फिर से नॉर्थ और साउथ प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे बार मैग्नेट आपको बताया गया था कि इसको आप ब्रेक किए, नॉर्थ साउथ था, मतलब ये साउथ यहां पे था लेकिन ये अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है, वैसे ही इसमें भी प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन कहीं पे भी सिंगल नॉर्थ या सिंगल साउथ नहीं हो सकता। जहां से आप तोड़ रहे हैं वहीं पे बन जाएगा। जी हाँ, तो यहां पे मैंने तोड़ा नहीं है इसीलिए मैंने ऐसे डायग्राम बनाया है। ये यू शेप मैग्नेट है। यू शेप क्या होता है? ऐसे और ऐसे। ये ऐसा शेप है ना यू शेप का, तो मैंने इसको ऐसे लगा दिया, ठीक है। यहां नॉर्थ में दिखा रहा हूं, यहां साउथ में दिखा रहा हूं, और बाकी इसको यहां से उड़ा दिया मैंने। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये बैक साइड से पीछे से जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसे पोल, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये वाला चीज, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये बैक साइड से जुड़े हुए हैं। आपको सिर्फ हम नॉर्थ और साउथ फ्रंट पार्ट दिखा रहे हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल जो होता है इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ये सिंगल वायर नहीं है, बहुत सारे वायर हैं, ठीक है ना, ये ढेर सारे, जितना टर्न्स आप बढ़ा सकें। अब आप क्या करते हैं कि रेक्टेंगुलर कॉइल लगाते हैं, कम्यूटेटर लगाते हैं, कार्बन ब्रश लगाते हैं, सर्किट लगाते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं। किसका क्या है काम वो हम लोग वर्किंग में ही एक साथ देख लेंगे। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेगा। ये करंट का डायरेक्शन हुआ और करंट फ्लो कर रहा है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने की जरूरत है कि जो AB वाला पार्ट है इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट है अपवर्ड, लेकिन जो CD वाला पार्ट है इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? डाउनवर्ड।
तो एक ही कॉइल के दो अलग अलग पार्ट्स में करंट का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए हमने दो अलग अलग पार्ट का अलग अलग मोशन का डायरेक्शन भी फाइंड करना होगा, जो अभी हम लोग करेंगे। इसके बाद नीचे कम्यूटेटर लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि जैसे हम लोग करंट पास कराते हैं, हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करेंगे कि कॉइल मूव करने लगता है। तो कॉइल जब मूव करता है तो कम्यूटेटर भी उसके साथ साथ मूव करता है, लेकिन कार्बन ब्रश चीजों को स्टैटिक रखता है। तो आपको यह समझना है कि कम्यूटेटर मूव करता है, कार्बन ब्रश मूव करने में हेल्प करता है, लेकिन खुद मूव नहीं करता है। पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये जो मूवमेंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, और उसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप लगाएंगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, वाह, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ना, तालियां। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे ना अभी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। क्या लगाएंगे? नहीं नहीं, मैक्सवेल ही लगा। आज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको क्यों पढ़ाया गया है? ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। अगर ये डायरेक्शन फाइंड नहीं करना होता, अगर मोटर प्रिंसिपल आपको नहीं सीखना होता, अगर मोटर आपके सिलेबस में नहीं होता, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्यों पढ़ते हम लोग? बार बार तो यही बता रहे हैं आपको। रीजन अगर आपके दिमाग में होगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं ये करने लगी आप, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। रटिएगा कि अरे जब करंट का डायरेक्शन हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैक्सवेल लगाएंगे, जब करंट का डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, मोशन निकालना है तो फ्लेमिंग लगाएंगे, तो कितना आप रटिएगा, लास्ट में भूलना ही है। तो समझिए चीजों को कि अगर आपके पास करंट का डायरेक्शन पता है और अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है और आपको अगर मोशन या फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें लगाना है। इसी वजह से आज इसे पढ़ाया भी गया। अभी हम जस्ट आपसे बोल रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है हमेशा नॉर्थ से साउथ होता है। तो चाहे आप ए बी वाले पार्ट की बात करें या सी डी वाले पार्ट की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ही होगा। लेकिन करंट जो है वो फर्स्ट वाले पार्ट में ऊपर की तरफ है, सेकंड वाले पार्ट में नीचे की तरफ है। तो दोनों ही पार्ट में अलग अलग हम लोग सीखेंगे कैसे निकालना है, और ये अगर आप सीख गए तो 50% काम आपका हो गया। हमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है और फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब हाथ देखो, ये चीजें डिजाइन ही ऐसी की गई है, हाथ ऐसा ही हो सकता है। आप खुद करके देखेंगे तो काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये सामने, तो ये हम अरेंज किए ऐसे। लेकिन ये अरेंज करने के बाद एक प्रॉब्लम ये आ रहा है, प्रॉब्लम जो है वो ये आ रहा है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इस तरफ से, मतलब नीचे की तरफ, 3D अगर आप इमेजिन करें तो, जबकि करंट का डायरेक्शन यहां कहां पे है? ऊपर। तो ऐसे अगर हम हाथ अपना अरेंज किए और ऐसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन हमारा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो अब हमको हाथ को उल्टा करना पड़ेगा। अब आपके पास एक ही ऑप्शन, आप हाथ ऐसे करेंगे, आप खुद करके देखिए इसको। आपका हाथ ऐसे था, अब ऐसा ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को स्टैटिक रखते हैं नॉर्थ टू साउथ, तो ये अब मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मोशन कहां आ रहा है? नीचे। तो इस पार्ट में मूवमेंट जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। अभी हम इसको कई बार बताएंगे, आपको पक्का समझ में आएगा, परेशान नहीं होना। अब इस वाले पार्ट की बात करते हैं, सीडी वाले पार्ट की। सर अलग अलग बात क्यों कर रहे हैं? एक ही तो कॉइल है, कॉइल एक ही है, लेकिन एबी में करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है जबकि सीडी में करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो मोशन का भी डायरेक्शन चेंज होगा, इसलिए हमको अलग से डिस्कस करना पड़ रहा है। तो इसमें तो हम डिस्कस कर लिए कि करंट मोशन नीचे की तरफ है। अब इसकी तरफ आते हैं, सीडी की तरफ आइए आप। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम होगा, लेकिन करंट आप देखो इस ऊपर की तरफ दिखा रहा है, जबकि इस वाले पार्ट में करंट है नीचे की तरफ। तो हाथ को हम कर लेंगे उल्टा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, मोशन किधर हो रहा है? ये मोशन हो गया। और ऐसे ही कॉइल मूव करता है, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये जो मोशन है, ये जो रोटेशन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। एंटी क्लॉकवाइज मोशन क्यों है ये पता चल गया आपको। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको करंट का डायरेक्शन पता है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, तो आप फोर्स का डायरेक्शन या मोशन का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यही है कि आप अपने फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड को परपेंडिकुलर टू ईच अदर लीजिए
और अगर फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, अगर सेंटर फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, तो थंब जो होगा वो मोशन का डायरेक्शन या फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो हम क्या किए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से अरेंज किए, लेकिन करंट तो आ रहा है नीचे की तरफ। इस वाले पार्ट में हम देख रहे हैं करंट ऊपर की तरफ है, तो हम अपना हाथ उल्टा कर लेंगे। अब आप देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट डायरेक्शन, थंब नीचे है तो ये मोशन का डायरेक्शन हो गया। लेकिन इस वाले पार्ट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस वाले पार्ट में तो फिर करंट ऊपर की तरफ दिखा रहा है जबकि करंट है नीचे। तो हाथ को उल्टा कीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, थंब ऊपर है तो मोशन का डायरेक्शन जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो दो अलग अलग पार्ट में हमें यह समझ में आया कि AB में जो करंट का करंट नहीं, AB में जो मोशन का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, CD में जो मोशन का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। और दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपका मोशन जो होगा कॉइल का कुछ इस तरीके का होगा, ये नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है। मतलब घड़ी का जो डायरेक्शन होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन, जिसे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। तो मोशन जो है किसी भी मोटर का वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब हम अभी तक हम लोग सिर्फ ये सीखे हैं कि कॉइल का मोशन किस डायरेक्शन में होगा। आगे कॉइल को हम लोग नीचे कनेक्ट किए हैं कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश से। एक्चुअली थोड़ा इमेजिन करो कि कॉइल ऐसे गोल 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 घूम रहा है, कॉइल गोल गोल घूम रहा है। इसका यह मतलब है कि जो AB पार्ट है वो CD बन रहा है और जो CD पार्ट है वो AB बन रहा है। आपको मेरे साथ इमेजिन करना होगा, कॉइल इस तरीके से गोल 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 घूम रहा है। एक पार्ट, इस वाले पार्ट को, हाफ पार्ट को हम AB मान लिए, हाफ पार्ट को CD मान लिए, तो ये AB जो होगा घूमते घूमते CD की तरफ जाएगा और CD उधर से घूमते घूमते AB की तरफ आएगा। ABCD, फिर CDAB, फिर ABCD, फिर CDAB, ऐसे ऐसे करके ये गोल गोल घूमते हैं। कम्यूटेटर का शेप कुछ इस तरीके का है और ये क्या करता है कि कम्यूटेटर का अगर आप नाम रख दे C1 और C2, तो कॉइल के साथ साथ कम्यूटेटर भी मूव करता है। इनफैक्ट ये कॉइल को मूव करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। क्योंकि अब क्या होगा कि ये ऐसे है कम्यूटेटर इन दिस वे, तो अब क्या होगा कि C1 जो होगा इस AB वाले पार्ट के साथ CD वाले पार्ट में जाएगा। मतलब C1 जो होगा वो C2 बनेगा और C2 गोल गोल घूमते घूमते C1 बनेगा। मतलब कॉइल के साथ साथ कम्यूटेटर भी घूम रहा है। लेकिन कार्बन ब्रश जो है नीचे वाला, ये इस तरीके का शेप का होता है। इनफैक्ट आप स्कूल के लैब में जाएंगे तो आपको दिखाया जाएगा। तो कार्बन ब्रश इस तरीके का है, ये कम्यूटेटर को तो मूव करने में हेल्प करता है लेकिन खुद मूव नहीं करता है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कार्बन ब्रश लगाने की क्या जरूरत है। कम्यूटेटर से डायरेक्ट आप वायर को लगा दीजिए और यहां से भी डायरेक्ट वायर को लगा दीजिए तो क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम यह होगा कि कार्बन ब्रश है बहुत छोटा चीज, लेकिन ये कम्यूटेटर को हेल्प कर रहा है मूव करने में और खुद मूव नहीं कर रहा है। जब ये खुद मूव नहीं कर रहा है तो नीचे वाला जो पार्ट है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, वो कांस्टेंट है। अगर आप नहीं लगाते हैं, कार्बन ब्रश को हटा यहां से डिलीट कर दे, अब ये डायरेक्ट यहां से लगा दे, कार्बन ब्रश निकाल दिए, कम्यूटेटर में डायरेक्ट लगा दिए, तो अब क्या होगा कि AB जो है वो CD बन रहा है, CD जो है वो AB बन रहा है। मतलब C1 जो है कम्यूटेटर C1 C2 बन रहे हैं और कम्यूटेटर C2 C1 बन रहा है। अब ये गोल गोल घूम रहे हैं, तो ये अगर नहीं लगा होगा तो ये वायर भी किधर जाएगा? इस तरफ, और ये वायर भी किधर आएगा? इस तरफ। अगर आप कार्बन ब्रश नहीं लगाए रखेंगे तो नीचे का जो सर्किट पहले से जो स्टैटिक था अब वो स्टैटिक नहीं रहेगा। अब क्या हो रहा है? कॉइल के साथ साथ कम्यूटेटर घूम रहा है और कम्यूटेटर के साथ साथ वायर घूम रहा है। ये वायर इधर, ये वायर इधर, ये पूरा सिस्टम ही ट्विस्टेड हो जाएगा, आग भी लग सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि मोटर में हम लोग कॉइल को घुमाएं, बहुत जरूरी है कि मोटर में हम लोग कम्यूटेटर को घुमाएं। हमें सर्किट को कांस्टेंट रखना है। अगर सर्किट कांस्टेंट नहीं रहेगा, सर्किट भी घूमने लगा, बैटरी भी घूम रहा है, की भी घूम रहा है, तब तो पूरा ट्विस्टेड हो जाएगा सिस्टम, पूरा का पूरा बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो कार्बन ब्रश का रोल यही है, ये कम्यूटेटर को स्टैटिक रखता है और कम्यूटेटर को स्टैटिक नहीं रखता, ये कम्यूटेटर को मूव करवाता है लेकिन सर्किट को स्टैटिक रखता है। दिस वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। मैं फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से करता है। ऐसा मींस मोटर वर्क करता है मोटर प्रिंसिपल पर। अगर किसी भी कॉइल को
करेंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इस पर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये कॉइल मूव करता है कंटिन्यूअसली, लगातार। पंखा ऐसा नहीं कि एक राउंड हुआ और फिर पंखा रुक गया, लगातार चलते रहता है। ऐसा कैसे होता है? बाकी और भी कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो आपको समझना है चीजों को सिंपल रखते हुए, बाकी कोई और चीज इसमें कनेक्ट नहीं किया जा रहा है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल होना जरूरी है, दूसरा यू शेप मैग्नेट आप यूज कर रहे हैं। सवाल है कि सर बार मैग्नेट क्यों नहीं? तो ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एयर गैप बिटवीन द पोल्स कम होता है यू शेप मैग्नेट में, तो मैग्नेटिज्म स्ट्रांग होता है। तीसरा हम लोग यूज कर रहे हैं कम्यूटेटर, चौथा यूज कर रहे हैं कार्बन ब्रश, और पांचवा यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। आप स्विच ऑन करते हैं तो आप पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट ही एक्चुअली देते हैं। तो अब क्या है कि हमें कॉइल को घुमाना है करंट पास करा के, और कॉइल को ऐसे घुमाना है कि बाकी सिस्टम में हमारा कोई प्रॉब्लम भी ना आए। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं और जैसे ही करंट पास होना शुरू होता है, आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही स्विच ऑन किया गया ये कॉइल घूमने लगा। और आप ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि कॉइल के घूमने का जो मोशन था, सॉरी, ये इधर से नीचे की तरफ आएगा और ऊपर की तरफ जाएगा, ये गलत है। नीचे से कॉइल जो होगा वो इस पार्ट में नीचे आएगा और इस पार्ट में ऊपर जा रहा है। ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझने के लिए पहले हम लोग सीखे कि डायरेक्शन नीचे, फर्स्ट पार्ट में डायरेक्शन नीचे ही क्यों आया और सेकेंड पार्ट में डायरेक्शन ऊपर ही क्यों गया। और इसके लिए हम लोग जो किए वो यूज किए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग ने हमें बताया था कि अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर हो, मींस कि अगर आपके पास करंट का डायरेक्शन हो और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो, तो आप बहुत आसानी से मोशन या थंब का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। और इसके लिए उसने बताया था कि आप फर्स्ट 3 फिंगर्स लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये सेंटर ऑफ, मतलब सेंटर फिंगर का करंट है, तो ये थंब मोशन बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है, ये अभी जनरेटर में भी बाद में हम लोग यूज करेंगे अपकमिंग क्लासेस में। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ हम लोग ले लिए। करंट जो था, बैटरी ऐसे ही लगाया गया था, इस पार्ट में करंट ऊपर जा रहा है, इस पार्ट में करंट नीचे आ रहा है। अब किया ये गया कि जैसे ही हम लोग स्विच ऑन किए, करंट का डायरेक्शन तो हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। अब अगर आप हाथ को तो आपको ऐसे ही रखना है, उंगली आप इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि पहला कंडीशन यही था कि आपको लेफ्ट हैंड लेना है और परपेंडिकुलर टू ईच अदर लेना है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उंगली ऐसे कर ली या कुछ और चेंज कर लिया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये करंट है, ये मोशन है। लेकिन हम देख रहे हैं कि करंट तो नीचे की तरफ ये दिखा रहा है, जबकि यहां करंट है ऊपर की तरफ, तो इसीलिए हम डायरेक्शन चेंज कर लिए। और डायरेक्शन चेंज कर लिए तो ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, थंब जो है वो मोशन बता रहा है नीचे की तरफ। यहां जब ये काम आप करिएगा तो सेम चीज नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि अब यहां पे करंट जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपका उंगली मतलब हाथ ऐसे एडजस्ट होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका करंट, तो मोशन हो गया थंब ऊपर की तरफ। तो ये डायरेक्शन आप फाइंड कर लिए एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है। नीचे आपने कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के हेल्प से कॉइल को मूव कराने लायक बनाया है और सर्किट को आपने स्टैटिक रखा है। कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर ये शेप है हाफ हाफ करके, और ये खुद भी गोल 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 घूमते रहता है ऐसे, ठीक है। तो मतलब अगर ये C1 है और ये C2 है, अगर ये AB कॉइल है और ये ऊपर CD कॉइल है, तो कॉइल जो ऐसा घूमता है रेक्टेंगुलर, AB से CD, CD से AB, तो C1 जो होगा वो C1 से C2 जाएगा, C2 से C1, ये गोल 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 घूमते जाएंगे। लेकिन कार्बन ब्रश जो होता है ये इनको घुमाता जरूर है, घूमने देता है, ये इट मेक्स इट मूव बट इट इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है, ये खुद रेस्ट में है, तो इधर नीचे का सारा कुछ रेस्ट में है। अगर आप ये नहीं लगाइएगा तो ये पूरा सिस्टम ट्विस्टेड हो जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, बहुत इंटेलिजेंट बैच है ये वाला, एक ही बार में मोटर समझ लिया। वैसे घर में एक बार आप ट्राई कीजिएगा डायग्राम बना के, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट हम लोग फिर से मोटर के साथ ही शुरू करेंगे। फर्स्ट टॉपिक वी हैड फॉर टुडे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ जी, आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है, प्लीज रिपीट। हाँ, एक्चुअली आप यहां पे जो यूज करते हैं मैग्नेट, वो करंट देने के साथ उसका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग होता है, इस वजह से। और आप जो मोटर खोले थे वो किसका था, किस इलेक्ट्रिकल एपरेटस का था? तो खिलौना वाले में क्यों स्ट्रांग मैग्नेट लगाया जाएगा? इस वाले मोटर को देखिए ना जो फैन लगा हुआ है,
वो बहुत स्ट्रांग होता है। खिलौना में तो बहुत छोटा सा काम होता है ना, आपको कोई घिरनी आपको नचाना होता है या कुछ इस तरीके का, इसी वजह से। वैसे खोल के देखे होंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। हम लोग पढ़े फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हम लोग पढ़े मोटर, टाइप्स ऑफ मोटर, प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। आपको यह बताया गया कि अब हम लोग इस कंडीशन में, हम लोग बहुत बच्चा वाला बात कर लिए कि जहां करंट होगा वहां मैग्नेटिज्म होगा। अब हम लोग ये बात करने वाले हैं कि करंट और मैग्नेटिज्म के हेल्प से मोशन प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन मोशन का डायरेक्शन पता होना चाहिए। उसके लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने यूज किए। फ्लेमिंग बताया, इफ वी टेक फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ आवर लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ वी टेक द डायरेक्शन ऑफ forefinger as the direction of magnetic field, if the direction of center finger as the direction of electric current, then the direction of thumb will show the direction of motion or direction of force. तो यही चीज है, आपको ध्यान रखना है कि एज इनपुट आपके पास 4 फिंगर और सेंटर फिंगर होता है, मतलब एज इनपुट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट होता है, एज आउटपुट आपके पास थंब यानी मोशन होता है। और इसके बाद आपको बताया गया कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसे इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के हेल्प से मोशन या प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये बात फैराडे के दिमाग में आया था। फैराडे ने ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का हेल्प से ये बात बताया। इलेक्ट्रिक मोटर दो टाइप्स का, एसी मोटर एंड डीसी मोटर। एसी मोटर वर्क्स ऑन अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मोटर वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट, बोथ वर्क्स ऑन मोटर प्रिंसिपल। मोटर प्रिंसिपल क्या है, अगर आप किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस कॉइल पर एक फोर्स लगता है जो उसे मूव कराता है। मोटर यहां पे दिख रहा है साफ साफ आपको। आप एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं इस तरीके का और उसको कनेक्ट करते हैं कम्यूटेटर से, कार्बन ब्रश से और सर्किट से। जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है, मोटर नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करना शुरू होता है, मतलब ये वाला पार्ट नीचे की तरफ, ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ। डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड किए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। आप खुद कॉपी पर स्केच करना मोटर, खुद अपना हाथ रख के देखना, आपको मिल जाएगा डायरेक्शन, नहीं मिलेगा नेक्स्ट डे हमसे पूछना। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्यूटेटर अगर नहीं लगेगा तो ये खुद मूव ही नहीं कर पाएगा। कम्यूटेटर हेल्प करता है, खुद मूव कर करके रेक्टेंगुलर कॉइल को मूव करवाता है। कार्बन ब्रश कम्यूटेटर को मूव करने में हेल्प करता है, लेकिन खुद रेस्ट में होता है और नीचे का जो सर्किट है उसको रेस्ट में रखता है। तो आज के लिए इतना ही था आपका। नेक्स्ट डे हम लोग अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस की जनरेटर। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए।